ಜನರು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮುಗುಳಿಹಾಳ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮಾಸ್ಮಾಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುದೋಳ್ ಕಣಕ್ಕೆ. Attention all parents. Are you searching for the perfect school for your child? Look no further. NPET's English Medium School is now accepting admissions for the upcoming academic year. Give your child the gift of quality education. Our highly experienced and qualified teachers provide personalized attention to every student, ensuring that they reach their full potential. Our school offers a wide range of extracurricular activities, including sports, music, and art, to help your child discover their passions and develop new skills. Our state-of-the-art facilities and advanced curriculum ensure that your child receives a top-notch education and stays ahead of the curve. Don't wait any longer. Enroll your child in our English medium school today and give them the best start in life. Admissions are now open, so call us or visit our website for more information. ಜನರು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಟೋಪನ್ನವರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಜನರು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಖದ ರಾಜನೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ನ 92 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 82 ಶಾಸಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. बहुत बहुत धन्यवाद. बेलगांव के जितना भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबको मेरा नमस्कार. 10 मई को कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है. उसमें आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, चुनाव में हिस्सा ले रही है. और संयोग ये है कि नेशनल पार्टी, कुछ दिन पहले हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला. नेशनल पार्टी बनने के बाद ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव है. और कर्नाटका में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. पंजाब में जलंधर की एक बाई इलेक्शन है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं. कल मैं हुबली और रौना विधानसभा क्षेत्रों में गया था. वहाँ जाकर देखकर रोड शो में पता चला, जोश देखकर लोग अपने आप आए हुए थे. जब लोग अपने आप आते हैं, जब लोग खुद ब खुद पैदल चल के जब अपने वाहन पर खुद अपना तेल डलवा कर अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी में खुद आएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग पुराने सिस्टम से तंग है और नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं. बिल्कुल पंजाब जैसा माहौल मैंने कल रौना में देखा. और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है. अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से एक छोटा सा काफिला शुरू किया था, जो आज नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन चुका है. दिल्ली में हमारी दूसरी बार सरकार है. पंजाब में हमारी सरकार है. 10 हमारे राज्यसभा के MP हैं. गोवा में हमारे 5 MLA हैं. 13% वोट शेयर है गुजरात में. और गोवा में हमारे 2 MLA हैं. और
आम आदमी पार्टी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ऑफ इंडिया। इतनी जल्दी किसी पार्टी ने राइज नहीं किया, क्योंकि पार्टी ईमानदार है, एक टीम की तरह हम काम करते हैं। वो हर टीम मैन की एक ड्यूटी लगी है। कैप्टन हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली में जितने काम हुए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो आप सब जानते हैं। जब भी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ ये चेक करने का कि आम आदमी पार्टी ने लोगों के पक्ष में कोई फैसला किया, जैसे ही किसी बिल को या किसी कानून को दिल्ली का एलजी रोके, साइन करने से मना करे, इसका मतलब वो लोगों के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने ये धार रखा है कि अरविंद केजरीवाल जब भी लोगों के पक्ष में कोई काम करेंगे एलजी रोकेगा। एलजी कहता मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। एलजी कहता मैं आपको डोर टू डोर राशन बांटने की अनुमति नहीं दूंगा। एलजी कहता मैं आपके प्रिंसिपल्स को सिंगापुर या फिनलैंड वगैरह लेटेस्ट तरीके एजुकेशन के, ट्रेनिंग के, टीचिंग के वो लेके सिखलाई लेने जाने नहीं दूंगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है असल में। पंजाब में भी ऐसा होता है। राज्यपाल साहब हमारे कह रहे हैं विधानसभा सेशन नहीं होने देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि हमारा बजट सेशन होने दीजिए। तो इन्होंने ये कर रखा है। दो नुकाती प्रोग्राम है बीजेपी का। अगर तो इलेक्शन से जीत गए तो ठीक है, वरना बाई इलेक्शन से जीतेंगे उसी स्टेट में। 20-30 कांग्रेस वाले, कांग्रेस तो आपको पता है चेंज नहीं है, अब एक्सचेंज है, वो तो जितने मर्जी खरीद लो उनके, वो उनसे इस्तीफे दिलवा के बाद में बाई इलेक्शन करवा के, ओथ सेरेमनी तो सुबह 4 बजे होती है, 3 बजे होती है, राज्यपाल को जगा लेते हैं, उठो जी एक बार मुख्यमंत्री की ओथ करवा दो, बाद में देखेंगे। अगर बाई इलेक्शन से नहीं आई तो बाई इलेक्शन में, और अगर बाई इलेक्शन वाला भी माहौल नहीं बन रहा तो फिर गवर्नर के जरिए तंग करो। पंजाब में 2 हैं बीजेपी के, हमारे 92 हैं 117 में से। कहीं भी आसपास ऑपरेशन लोटस लागू नहीं हो सकता। नहीं, हम आम आदमी पार्टी वाले टूटने वाले नहीं हैं। वहाँ गवर्नर से तंग करो। ऐसे बंगाल के गवर्नर कर रहे हैं। ऐसे मुझे सीएम तमिलनाडु की चिट्ठी मिली है कि 2-2 साल गवर्नर साइन नहीं करते, जो हम विधानसभा में एक्ट पास करते हैं। तो लोकतंत्र में इलेक्टेड लोग फैसला करते हैं, सिलेक्टेड नहीं। यही दिक्कत है बस। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए, यूपी के राज्यपाल ने योगी जी को कितने लेटर लिखे होंगे? गुजरात के राज्यपाल ने कितने लेटर लिखे होंगे अपने मुख्यमंत्री को? तो ये सिर्फ यहाँ इनकी सरकार नहीं है, वहाँ तंग करने के तरीके। और बीजेपी वैसे भी जुमला, भारतीय जुमला पार्टी है, जुमले बनाते हैं और सुनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बात करती है। पंजाब में हम स्कूल एजुकेशन की तरफ बहुत कमाल के स्टेप ले रहे हैं। 504 हम आम आदमी क्लिनिक खोल चुके हैं और 21,21,350 आदमी 31 मार्च 2023 तक वहाँ पे फुटफॉल थी और ठीक होके चले गए। पंजाब में बिजली हमने फ्री करने का वादा किया था। 1 जुलाई से 83% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है। और पंजाब में किसानों का मुआवजा जो है, फसलें खराब हुई 15,000 रुपया पर एकड़ विदिन 20 डेज। अब अभी 26 मार्च को खराब हुई थी फसल, 13 अप्रैल को पहले चेक दे दिए थे हमने। सबसे बड़ी बात जो पंजाब से मैच करती है यहाँ बेलगांव में, वो है गन्ना की खेती, शुगर केन। बिल्कुल सेम दिक्कत 1 साल पहले हमारे यहाँ भी थी। गन्ना का रेट नहीं मिलता था। जो गन्ना की मिलें हैं ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल पैसे नहीं मिलते थे। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर पैसे देने बनते हैं। तो जब हमने सरकार टेक ओवर की आज से 13 महीने पहले, तो हमने गन्ना उत्पादकों को बुलाया। कितने पैसे? 392 करोड़ रुपया शुगर केन का पंजाब सरकार ने देना था। सबसे पहले पंजाब सरकार ने शुगर केन को कर्ज मुक्त किया, 392 करोड़ दिए। 380 रुपये क्विंटल, पूरे देश में सबसे ज़्यादा 380 रुपये क्विंटल हमारे पंजाब में गन्ने का भाव है, जहाँ 220 रुपये है। वो भी मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ भी मिलें पैसे नहीं देती थी। हमने उनको बुलाया, मिल वालों को, कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के हम लोगों का पैसा देंगे, वरना 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है।
अगर नीयत सच्ची हो सब कुछ हो सकता है। तो गन्ने का किसान हमारे यहाँ खुश है फिर पंजाब में मैं आपके सामने एक साल में 28,042 2042 नौकरियां सरकारी देकर आपके सामने खड़ा हूँ। कच्चे मुलाजिमों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको पक्के कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। कोई किसी डिपार्टमेंट में अगर लीगल प्रॉब्लम आ जाए कि हाई कोर्ट कुछ पत्र मांगे तो क्लियर करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, मुलाजिमों की तरफ से हम लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ करप्शन के लिए हमने हेल्पलाइन खोली। आज 350 से ज़्यादा बड़े बड़े मंत्री या कोई अफसर वो जेल के अंदर है। जैसे राजकुमार भाई भी करप्शन के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए लड़ाई करते हैं कि ये बेलगांव में आसपास इलाके में ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटका होना चाहिए। अभी आपके यहाँ तो थोड़ा आप क्योंकि साइज़ में कर्नाटका बड़ा है, 224 सीटें हैं, हमारे यहाँ 117 हैं, लोकसभा की 13 हैं, आपके यहाँ 28 हैं, तो फिर भ्रष्टाचार भी बड़ा होगा ना। फिर हमारे एक मंत्री को हमने पकड़ा, इंडस्ट्री मिनिस्टर था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसके घर से 1 नोट गिनने वाली मशीन मिली। मुझे यहाँ पता चला यहाँ 3 मिली हैं, 4 मिली हैं, तो फिर बड़ा है ना साइज़ में कर्नाटका, ठीक है ना। तो नोट गिनने वाली मशीनें घर पे मिल रही हैं। क्या ये सोचकर हमारे शहीदों ने फांसी के रस्से चूमे थे कि हम इनको इतनी आज़ादी दे देंगे, देश के लोगों को ही लूटेंगे? ये कोई जवाब है इनके पास? क्या शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह जी रहना, तो मतलब इतने शहीद, ये देखो 1824 की बात, 1824 से संग्राम लड़ रहे, वो इस बात के लिए आज के दिन देखने के लिए लड़ रहे थे कि आज़ाद हो जाएंगे, गोरे चले जाएंगे, ये काले अंग्रेज आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया फिर? तो इन्होंने देश को ही लूटा और किसको लूटा है? और सब इस मोदी जी के मित्र जो हैं वो मतलब माला माल हो रहे हैं और देश बेहाल हो रहा है। वो कहते हैं जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। तो करप्शन के लिए हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन खोली है। हर रोज हम पकड़ते हैं। विजिलेंस ब्यूरो हमारी अब अटैच करती है, प्रॉपर्टी भी अटैच करते हैं हम। करप्शन से उसने क्या प्रॉपर्टी बनाई वो अटैच करते हैं। तो आम आदमी पार्टी झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और झाड़ू का काम ही सफाई करना होता है। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी खूब आएंगी। कल मैंने देखा है लोगों का जोश, ये जीतने वाला माहौल है। तो कहते जी फिर भी कितनी? मैंने कहा गिनती नहीं बता सकता, आएंगी थोड़ी देर बाद बता सकता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा आऊँगा। तो कहते सर्वे में तो आप आ नहीं रहे, टीवी के सब सर्वे में। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में ही आते हैं बस। किसी ने नहीं कहा था कि दिल्ली में सर्वे में आम आदमी पार्टी जीतेगी, उसको 63 सीट्स आएंगी। किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि पंजाब में 92 सीट्स आएंगी। हम सर्वे में नहीं आते, वो सर्वे तो घर पे बैठ के बनते हैं जी, पता है, ठीक है ना। तो हम तो लोगों में जाते हैं, लोग हमारा सर्वे हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी अभी आपने दिल्ली में जैसा इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गुजरात, जितना आप आम आदमी पार्टी इंटरेस्ट किया था, जितने रैली किए थे, उतना इंटरेस्ट आप कर्नाटक में क्यों नहीं दिखे? नहीं आ रहे हैं हम। आपको उम्मीद नहीं है क्या करना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं आके गया हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ आके गया हूँ दावनगिरी है। और अभी 2 दिन में, कल भी मेरी 3 जनसभाएं थी, आज भी 2 रोड शो हैं, एक जनसभा है, कल नॉमिनेशन भी करवाए। और इसके बाद फिर मैं आऊँगा अगले हफ्ते फिर, क्योंकि मेरे का पंजाब में भी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन सेम डेट को। तो हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP राघव चड्ढा जी वो बेंगलोर में हैं, आज और कल पूरे दिन बेंगलोर में है। केजरीवाल साहब भी आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा देखिए, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते कि नहीं, हमारी तो नई पार्टी है, क्या पता कहाँ से ज्वालामुखी फूट जाए। तो लोगों का विश्वास करना, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम चेहरे की राजनीति करें, ये हमारे सारे नेता हैं। आप कहते हो कि कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पंजाब में 92 में से 82 फर्स्ट टाइमर हैं, मैं भी फर्स्ट टाइमर हूँ, पहली बार MLA बना हूँ, MP में पहले बन गया था। तो आम घरों के लड़कों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया हुआ है। तो पब्लिक है, लोकतंत्र में पब्लिक बड़ी होती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर।
कर्नाटक में आज भी कई जगह आईटी रेड हुआ है, क्या केंद्र सरकार ये आईटी और ईडी को ना इस्तेमाल कर रही है? देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, जब इलेक्शन कमीशन का जो हेड है, जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, उसकी फाइल इतनी ज़्यादा तेज़ी से चले कि अमेरिका भी पीछे छूट जाए, 1 घंटे में इस्तीफा परवान, आधे घंटे में राष्ट्रपति की परमिशन, अगले 1 घंटे में बन गया जी। तो जब नॉन बीजेपी शासित प्रदेशों में सीबीआई, आईटी और ईडी इनकी रेडें हों, तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ख़राब कर दिया है और ये डराते हैं। इससे पहले भी सीबीआई को सरकार का तोता बोला गया था। अब जो तोता है वो तो जो चोरी डालेगा उसी का मिठू मिठू करेगा ना। तो जितने ईडी की जो रेड्स हैं उनका जो कितने उसमें से चार्जशीट करके दोषी साबित हुए उसकी परसेंटेज पता है आपको? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मनीष सिसोदिया के घर पे ईडी आ गई, सोफे भी चेक कर लिए, पूरा घर खंगाल दिया, गांव चले गए, वहाँ 300 रेड हुई। कितने अफसर ड्यूटी पे लगे होंगे, मतलब अगर उनके अफसरों की एक दिन की तनख्वाह भी जोड़ लेना उतने पैसे भी नहीं मिले। फिर भी चलो अंदर, क्योंकि स्कूल बना रहा है ये तो शिक्षित कर रहा है लोगों को। ये तो एमसीडी में हमारा बहुमत आ गया, आपको पता ही है, हमारा बहुमत आ गया। फिर भी कहते नहीं मेयर हमारा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जी कि जी हम बहुमत में हैं, हमें जरा करवा दीजिए सर। ये इनको ये यकीन ही नहीं होता कि हम हार गए। इनको हारना भी सीखना होगा, कर्नाटका में सीख जाएंगे ये। और बाकी रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस गुजरात में हमने बहुत मेहनत की सबने, और इसी वजह से 13% वोट आए, राष्ट्रीय पार्टी बनी। गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात में इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा कांग्रेस ने। कांग्रेस तो ऐसे कहती है कि अब हमारी बारी आएगी, अपने आप ही आएगी। कोई आया बड़ा यहाँ पे उनका, जो रिमोट एरिया में कोई गांव में कोई गया, कोई वो तो भारत पता नहीं कहाँ से जोड़ रहे हैं। वो भारत जोड़ो पार्टी जुड़ नहीं रही उनसे। और जितने एमएलए होते हैं, जो कांग्रेस है वो आजकल चेंज नहीं है, वो एक्सचेंज है। किसी के 2-4 एमएलए कम पड़ते हो, कांग्रेस से ले लो। किसी का बहुमत थोड़ा कमज़ोर हो, ज़्यादा स्ट्रांग करना है, कांग्रेस से खरीद लो। तो कांग्रेस तो मतलब अपने ऑफिस पे फट्टा लगा ले कि यहाँ पर लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। कांग्रेस को वोट देकर क्या करोगे? क्या पता कब बीजेपी में चला जाए वो। कितने अच्छा बीजेपी वाले इधर चले हुए हैं आजकल कांग्रेस की तरफ। तो ये आपस में मतलब खेल खेलते रहते हैं, तू इधर आ जा मैं तुझे नहीं कुछ कहूँगा, तू उधर आ जा मैं तुझे नहीं। पंजाब में भी ऐसा था, 5 साल वो 5 साल वो, लेकिन अब पंजाब में तीसरा विकल्प आ गया और पंजाब तरक्की की लीहों पर आ गया। और जो घोटाले निकल रहे हैं वो ऐसे मतलब हैरान करने वाले घोटाले हैं कि मतलब तरस आता है कि इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए था। 75 साल के बाद भी हम अभी सीवरेज, गंदा पानी, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ तक ही खड़े हैं। वो मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं अमेरिका वाले, हम सीवरेज में घुसे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है। हाँ जी, वो तो है ही, वो तो कब से है उनका कि अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। इसलिए कोई भी नेता, बड़ा नेता तो ना तो कोई बड़ा नेता हारता है और ना कोई बड़ा नेता जेल जाता है। ये तो जब तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, जब इलेक्शन हुए हैं तभी ईवीएम मशीन के बारे में आप आम आदमी पार्टी एक शक के नज़र से देखिए, मुद्दा उठाइए। देखिए ये पूरे अकेला आम आदमी पार्टी का नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं, तो इसको क्लियर कर देना चाहिए। इसमें अगर उनको मोदी लहर पर यकीन है, मैं पार्लियामेंट में मैंने ये बोला था, कोई भी ईवीएम पर सवाल उठे तो बीजेपी विरोध क्यों करती है उसका? नहीं ईवीएम तो ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर उनको मोदी लहर पर इतना यकीन है कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो वो बोलें छोड़ो जी ईवीएम को, चाहे बैलेट पेपर से करवा लो, हमें यकीन है। लेकिन ईवीएम की रक्षा में क्यों आती है बीजेपी?
तो कुछ ना कुछ तो शक होता ही है ना, तो वो दूर कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे पंजाब में भी तो पंजाब में आपने जब जीता था वहाँ पे भी ईवीएम मशीन पे इलेक्शन हो रहा है। हम तो इतनी देर पर रखवाली करते हैं कि जितनी देर रिजल्ट नहीं आता, हम तो जो होता है ना जो सेंटर जहाँ गिनती होती है वहाँ पर हमारे वॉलंटियर जो हैं वो रातें बिताते हैं और अपनी वोट की खुद रखवाली करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर। ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮುಗುಳಿಹಾಳ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಂದು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BJP ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ಏನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಉಜ್ವಲ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನಗರಗಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಡಾವಣೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 4,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಈ ನಗರ ವಂಚಿತ ಏನೋ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಒದಗಿಸಬೇಕನ್ನೋದು ನಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಏನು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ? ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಈ ಏನು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಗಟ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಮಹಾನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದು ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಅಜೆಂಡಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದೆ ಸುಮಾರು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, 5-10 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮಾಸ್ಮಾಡಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಚಾರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ತರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಮೂಲವಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಾಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ 4 ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರಿಗೆ ಸೂರನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ, ಅಂಜಲಿ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುದೋಳ್ ಕಣಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ರಂಗೇರಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುದೋಳ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾಮದುರ್ಗ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಾಳೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಶಾಸಕ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬುಬುಕ್ಕಾ ನಾಯಕರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೇಟ್ ಆಗ ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ BJP ಟಿಕೆಟ್ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗೈತನಂತಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸವದತ್ತಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೀವು ಬೈಲೊಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ JDSನಿಂದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರೆಡ್ಡಿ ಸಾವುಕಾರ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಾಲನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಸಂಬಂಧ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಣ್ಣ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ತೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಾದಾ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾಡ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತೇರಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಾಪ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಾಪುರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೀದರ್ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಗವಾಡಿಂದ ವಿಠಲ್ ಪವಾರ್ ವರದಿ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್.